Now our next topic is pyelonephritis. Pyelo means renal, pelvis, nephros means kidney, or itis means inflammation. It is the inflammation of kidney or renal pelvis. So pyelonephritis means phylum means renal pelvis, nephros means kidney, and itis means inflammation. It is the ascending urinary tract infection that has reached the pelvis of the kidney, है ना. तो ये एक इन्फेक्शन है पेल्विस की, किडनी की, और ये कैसी इन्फेक्शन है? असेंडिंग है, मतलब लोअर यूरिनरी सिस्टम से ऊपर को जा रही है ना. इट इज अ असेंडिंग इन्फेक्शन. Definition: it is the inflammation of kidney or upper urinary tract that usually result from bacterial infection of the bladder, है ना. ज्यादातर जो इन्फेक्शन है जो ये इन्फ्लामेशन है, it is due to the bacterial infection. After that, this is pyelonephritis. Here it is the inflammation within the kidney. These are the renal pyramid, and this is the renal pelvis. So it is the inflammation of either renal pelvis or the kidney. Then the types of pyelonephritis. It is mainly of three types: acute pyelonephritis, chronic pyelonephritis, or xanthogranulomatous pyelonephritis. We will study one by one. जो acute pyelonephritis है, it is sudden, है ना, एकदम से होगा short time के लिए. chronic जब repeated किसी को acute pyelonephritis हो रहा है तो it may result in the chronic pyelonephritis. xanthogranulomatous pyelonephritis में क्या होगा? granules formation होगी which are filled with abscess. granule मतलब circular structure made up of protein. Now acute pyelonephritis. तो acute pyelonephritis is a sudden development of kidney inflammation, है ना. जो acute है sudden होगा और short time के लिए होगा, but it can be severe in the elderly. जो elderly person है उसमें ये severe हो सकता है. and people who have cancer or AIDS, because in condition में जो person की immunity है that may become weakened, है ना. immunity weak हो जाएगी, AIDS है, cancer है, tuberculosis है, तो उन condition में भी ये severe हो सकता है. clinical feature क्या है इसके? acute onset of pain, फीवर विथ चिल्स, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है फीवर होगा. लंबर टेंडरनेस, जो लंबर एरिया है उसमें पर्सन को टेंडरनेस होगी, पेन होगी, पेन ऑन टच, डिस्यूरिया होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब पर्सन को क्या है, बार बार मिक्चुरेशन होगा. ऑन एग्जामिनेशन यूरिन शोज बैक्टीरिया इन एक्सेस, है ना. यूरिन में पस सेल आइडेंटिफाई होंगे, बैक्टीरिया आइडेंटिफाई होंगे. आफ्टर दैट क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस. It implies kidney infection. It is also kidney infection and chronic tubulointerstitial disease resulting in repeated attack of inflammation. जब person को repeated बार बार person को inflammation होगी kidneys में, ये scarring होगी, tissue damage होगी, तो it result in chronic pyelonephritis. After that, the types of chronic pyelonephritis, it is mainly of two types: chronic obstructive pyelonephritis or reflux pyelonephritis. As the name indicate, chronic obstructive, है ना. इसमें जो pyelonephritis है, it is due to obstruction, कि यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसे कि किडनी स्टोन है which may lead to obstruction. तो obstruction to the outflow of urine at different level प्रीडिस्पोजेस टू किडनी टू इन्फेक्शन, है ना. अगर यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यूरिन आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, विच में लीड टू क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाइलोनेफ्राइटिस. और रिफ्लक्स पाइलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू द रिफ्लक्स ऑफ यूरिन, कि जो यूरिन है उसका बैक फ्लो हो रहा है. यूरिन ब्लैडर तक तो आ गया बट ब्लैडर से आगे नहीं जा पाएगा, और इट में रिवर्ट बैक अप टू द यूरेटर एंड इनटू द kidney. तो reflux of urine from bladder into the one or both of the ureter during micturition is the major cause of chronic pyelonephritis. So these are the two types of chronic pyelonephritis: chronic obstructive pyelonephritis or reflux pyelonephritis. After that, third one is xanthogranulomatous pyelonephritis. It is unusual form, बहुत कम देखा गया है, ज्यादातर acute और chronic होता है, तो ये बहुत कम
रेयर केसेस में होता है, एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेन्युलोमेटस एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें ग्रेन्युलोमास फॉर्म होंगे जिसमें एब्सेस प्रेजेंट होगा, एंड स्फीयर किडनी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, एंड क्लिनिकल पिक्चर दैट में रिजेंबल लाइक रीनल सेल कार्सिनोमा। और जो सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे कार्सिनोमा सेल का स्ट्रक्चर होता है, कैंसरस सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसके तरह इनका भी स्ट्रक्चर हो जाएगा, बट दे आर नॉट कैंसरस सेल्स, है ना। एंड अदर इन्फ्लामेटरी रीनल पेरेन्काइमल डिजीज, या तो कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, अदर कोई जो इन्फ्लामेटरी डिजीज है किडनीज की, उसकी तरह स्ट्रक्चर हो सकता है। आफ्टर दैट द कॉजेस, कॉज मेनली क्या है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किस वजह से हो सकता है, वेसिकुलो यूरिथ्रल रिफ्लेक्स की जो यूरिन है, बैकफ्लो ऑफ यूरिन, that is infected urine from bladder to the upper urinary tract, है ना, दैट इज वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लक्स की ब्लैडर से यूरिन वापस यूरेटर्स के थ्रू किडनीज में जा रही है, विच में लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द किडनी। किडनी स्टोन है, अगर यूरेटर में स्टोन है, ठीक है, तो आगे यूरिन फ्लो नहीं कर पाएगा, विच में लीड टू इन्फेक्शन ड्यू टू द यूरिनरी स्टेसिस। देन यूरिनरी ट्रैक कैथेटराइजेशन, अगर कैथेटराइजेशन के टाइम एसेप्टिक टेक्निक फॉलो ना करें तो द इन्फेक्शन में स्प्रेड इनटू द ब्लैडर, एंड फ्रॉम ब्लैडर इट में स्प्रेड अप इनटू द किडनीज। एंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूरिथ्रल पेरिस्टाल्सिस है वो स्लो हो जाती है, विच में लीड टू द किडनी इन्फ्लामेशन, है ना, और क्या होगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा यूरेटर्स का। देन न्यूरोजेनिक ब्लैडर में क्या होगा, जो ब्लैडर को नर्व्स सप्लाई करती हैं, दे बिकम डैमेज, सो द एबिलिटी ऑफ द ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इज डिक्रीज्ड, है ना, विच में कॉज द वेसिको-यूरिथ्रल रिफ्लक्स। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट कॉम्प्रेसेस द यूरेथ्रा, अगर यूरेथ्रा को कॉम्प्रेस करेगी द यूरिन कैन नॉट बी पास आउट ऑफ द बॉडी। आफ्टर दैट डायबिटीज मेलाइटस, एक तो डायबिटीज की वजह से जो सर्कुलेशन होता है दैट इज पुअर, है ना, पुअर सर्कुलेशन होगा, जिस वजह से WBC साइट ऑफ इन्फेक्शन तक नहीं जा पाएंगे, विच में लीड टू किडनी इन्फ्लामेशन। एंड आफ्टर दैट clinical manifestation, the person may have flank pain, abdominal pain, blood in urine, sign of infection, fever, chills होगा, unintentional weight loss may also occur, malaise is general weakness, decreased appetite, lumbar tenderness, dysuria, difficult urination, pyuria is pus in urine, hypertension, है ना, जब किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यूरिनेशन होगा बार बार, एंड बैक्टीरिया, यूरिन में बैक्टीरियल काउंट प्रेजेंट होगा। आफ्टर दैट डायग्नोसिस में लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में आ जाएगा यूरिन एनालिसिस विल शो द WBC और बैक्टीरिया में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन द यूरिन। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट फॉर द सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए करेंगे, एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे कि जो एंटीबायोटिक है पर्सन एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव तो नहीं है, एंड इंट्रावेनस पाइलोग्राफी इट इज डन टू चेक द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी and the ureter or bladder. After that the urine dipstick test should be done. इसमें क्या करते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस चेक करते हैं पेशेंट के यूरिन में। एक प्लास्टिक स्ट्रिप होती है विच इज ट्रीटेड विद द केमिकल, है ना, जो केमिकल के साथ ट्रीट की जाती है। आफ्टर दैट इट इज डिप्ड इन द यूरिन, तो इसमें कुछ कलर चेंजेस होते हैं, जो रिएक्शन होगा इट में इंडिकेट द पैथोलॉजिकल चेंजेस इन यूरिन, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ WBC in urine. And urine analysis में क्या आएगा, WBC in cast shape due to pyelonephrosis
नेफ्राइटिस, कास्ट शेप जो WBCs की होती है वो कैसी होगी, जैसे ट्यूब शेप के स्ट्रक्चर होता है उस टाइप की शेप हो जाएगी WBCs की, विच इंडिकेट द पाइलोनेफ्राइटिस। अगर कोई WBC यूरिन में प्रेजेंट नहीं है, इट इंडिकेट नो इन्फेक्शन, और यूरिन कल्चर करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया टू आइडेंटिफाई विच बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। आफ्टर दैट द मैनेजमेंट, goal of the management is to control the infection and reduce the symptom, and urine culture antibiotic sensitivity test is performed on the basis of infective agent, एंड एंटीबायोटिक कौन से यूज करेंगे, सच एज टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, वैंकोमाइसिन एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड, एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सिफेलोस्पोरिन, सल्फामिथोक्सोल एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड। एंटीबायोटिक सच एज पैरासीटामोल given for fever, analgesic can also be given to relieve pain, and after that surgical management include extra corporeal shock wave lithotripsy ESWL, and in this with the help of ultrasonic wave the stone is broken down into the fragment and then it is removed from the urinary system। and next is प्लास्टी मीन्स रिपेयर। तो इसमें अगर यूरेटर में स्टीचर है, स्टीचर मतलब नैरोइंग है ना, तो उसको रिपेयर कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। आफ्टर दैट यूरेट्रल री इम्प्लांटेशन, इट इज डन टू क्योर वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स। इसमें क्या करते हैं कि री इम्प्लांटेशन मतलब रीपोजिशनिंग करना, कि जो यूरेटर्स हैं उनकी री पोजिशनिंग करेंगे, उनकी अगर किसी टाइप की ब्लॉकेज है तो उस वजह से उसको फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो इन दिस ट्यूब्स ज्वाइन टू द ब्लैडर, जहाँ पे वो ब्लैडर के साथ ज्वाइन होते हैं यूरेटर, वहां से उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यूरेट्रल स्टंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीजे स्टंट एंड इट इज इंसर्टेड फॉर यूरिन फ्लो एंड द सपोर्ट। तो इसको नॉर्मली जो अगर किसी टाइप की ब्लॉकेज है यूरेटर में तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, एंड इट हेल्प फॉर द फ्लो ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ द यूरिन। तो ये जो यूरेटर स्टंट है ये इंसर्ट किया जाता है ब्लैडर से किडनीज तक। अगर यूरेटर में किसी टाइप की ब्लॉकेज है ना, ब्लैडर से किडनीज तक इसको इंसर्ट करेंगे और जो यूरिन का नॉर्मल फ्लो है वो हो जाएगा। After that, the nursing management, nursing diagnosis include pain related to infection of the kidney. Intervention include assess the intensity, location factor that aggravates the or relieve pain, and provide adequate rest to the client, and encourage drinking plenty of water, and give appropriate analgesic drug with therapy programs. Next is risk for infection related to presence of bacteria in urine. Assess the patient temperature, vital sign check करेंगे, and record the characteristics of urine. Instruct the patient to drink 2 to 3 liters of water and monitor re-examination of urine culture. Instruct the patient to empty the bladder completely each time the bladder. Give perineal care, maintain to keep them clean and dry. This is all about the topic.